हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वार्म वेलकम। विकास भारद्वाज। और आज मैं सबसे पहले जब बात करूंगा लेक्चर की, तो बिफोर दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर द लेसन्स ऑफ द इमरजेंसी, व्हाट आर द लेसन्स ऑफ द इमरजेंसी फॉर examination perspective, from democracy perspective, from the perspective where you can see that what is required to understand. So most important lesson emergency gave us was that unity, strength in unity is very, very important. कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर फिलिप ऑडनबर्ग, उन्होंने कहा था दैट पॉलिटिकल साइंटिस्ट एक्सपेक्ट नहीं करते इंडिया में डेमोक्रेसी सरवाइव करेगी, बिकॉज इंडिया वाज अ वेरी डेस्परेटली पुअर and mainly agricultural economy country, having religious, caste, and backward society. All these elements were there, and it was a very, very diverse, very, very diverse country. That is why nobody believed that it would survive as a democracy, because India was supposed to be having number of separate nations. But then, what do you see today? What do you see today? India is a thriving democratic nation. क्या इंडिया में कभी अथॉरिटेरियन स्पेल आया? इंडिया में कभी अथॉरिटेरियन स्पेल आया कि नहीं आया? आया. That is what we called emergency. But what are the several takeaways? What are the several takeaways from the emergency? First of all, emergency ने हमें सिखाया, emergency ने हमें दिखाया that we as a nation can survive. We as a nation will outgrow all these tendencies. Blueprint बना opposition के success के लिए. Dominant political formations can change if you are not going to listen to the people's voice. So absolute majority सब तरह के डिबेट को खत्म कर देती है, ऐसा आप कहेंगे थियोरिटिकल एंगल से. There is no importance of opposition parties when there is a absolute majority by the ruling power. That is what you can say about theoretical angle. But then when you talk about practical things, it is not true. Today, what is true is that even if you don't have numbers, it needs to be accommodated. No rule book, no plan can work. जेल में डाल दो, कुछ भी कर दो. India is too diverse, cannot be run by diktat, cannot be run by single hand. एग्जाम की तरह है भाई सिविल सर्विसेज के लिए. कितने लोग पढ़ा रहे हैं, कहाँ कहाँ पढ़ा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, पेपर निकलवाओ. पेपर निकालना कैसे है, ये कैसे सीखोगे? तो बहुत ही सिंपल बट येट मिस्टिक आइडियाज हैं. इट इज नॉट समथिंग विच यू कैन लर्न थ्रू गॉसिप्स एज सच. स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन चाहिए, वो पीड़ा चाहिए, वो तपिश चाहिए. कंसिस्टेंसी सिर्फ नहीं चाहिए. कंसिस्टेंट तो कोई भी हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी के पीछे की भी कंसिस्टेंसी चाहिए. माइंड की कंसिस्टेंसी, ये थॉट्स की कंसिस्टेंसी. सो इमरजेंसी ने देखा कि देर आर सो मेनी आइडियाज विच वर ऑलरेडी देयर. लिबरल डेमोक्रेसी जो थी वो हिली. जुडिशरी वॉज ऑल्सो नॉट वर्किंग अप टू द मार्क. लेकिन फिर भी इतने पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद भी इंडिया लौट के आया, बिकॉज द पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी सब कुछ किया. फोर्स यूज की, फोर्सिबल फैमिली प्लानिंग ड्राइव्स तक चलाती. लेकिन क्या उससे सब कुछ कंट्रोल हुआ? नहीं हुआ. बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स का करियर खत्म हो गया बिकॉज ऑफ इमरजेंसी. ऑपोजिशन लीडर, दैट आइडिया केम अप, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन. That is why it came up in the year 1977. First non-Congress government that followed after the first election after emergency, it came up with the idea of leader of the opposition. Salaries and allowances of leader of opposition in Parliament Act 1977. Political fortunes of many leaders changed. एक जो political prisoners जो power में आए, they had more legitimacy. Parties जो family fiefdom बन गए थे, they were being exposed. Dynasties could be
derailed in their own lifetime. Jayaprakash Narayan, Anna Hazare, these leaders are the role models, major catalysts like George Fernandez. So political entities also changed. That is how by 1980 BJP emerged. Importance of keeping control over state media and retention of the emergency clause in the constitution. उसका रोल भी आया. That is why प्रसार भारती, it remained an important tool. It remained as a state broadcaster, okay, not as a public service institution. It must act as a public service institution, but it acted as a broadcaster more. No party has freed air radio waves either. That still remains. Songs of resistance were sung. तो इमरजेंसी से हमने बहुत सारे लेसन सीखे हैं. इनकरेक्ट रिपोर्ट्स आई, उनको क्वेश्चन किया गया. दैट इज व्हाई ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन 1949 it was discussed in the assembly that fascism had just been defeated during the Second World War. Dictators have always been unpopular. वो डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं लॉन्ग रन में, लेकिन डिक्टेटरशिप फिर भी शुरू हो जाती है, फिर भी ग्रो करती है. तो क्या करें उसका. यानी कि इंडिया में भी अगर डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज अराइज होती हैं, दे अराइज आउट ऑफ द गुड वर्किंग डेमोक्रेसी. They arise out of the desire to deal with the lawlessness. They run through only constitution and they look for some shortcuts. But then it is never ever helping in the cause in the longer run. The cause will only be fulfilled by the right ways. So India, democratic principles, ideas, they all will be making sense only when you understand the preamble, visualize it and understand it. उसमें जो terms दिए गए हैं प्रीलिम्स में तो सीधा क्वेश्चन आ जाता है उसमें से. देयर इज नथिंग टू टॉक अबाउट दैट एज सच. वंस यू अंडरस्टैंड द एसेंस देन वी आर थ्रू विद इट. सो दैट इज व्हाई विद दिस आइडिया वी कैन मूव ऑन टू डिफरेंट थिंग्स. तो अभी हमने बात की क्वालिटी एजुकेशन, न्यू अपॉर्चुनिटीज, डेडिकेटेड टू ड्यूटीज. फिर से वही बात. तो सिर्फ क्या एक एडवर्टीजमेंट देने से या फिर स्कीम को प्रॉपरली आप पुटअप करने से क्या सारी बात हो जाती है? आपको तो याद होनी चाहिए. एक बार जब आप फील करोगे दैट आई एम द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग इट एंड द रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग अबाउट इट. फील कीजिए आप गहलोत साहब के साथ हैं. फील कीजिए आप उनके पीएस हैं. फील कीजिए आप उनके ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हैं. फील कीजिए आप नीति आयोग के मेंबर हैं. वही फील करने से ही आधा काम तो वैसे ही हो जाएगा. आधे को पसीना आ जाएगा, आधे फील कर पाएंगे, आधे कर ही नहीं पाएंगे, आधे कुछ मिनट कर पाएंगे, गेम खत्म. तो इसमें बताने का पढ़ाने का कुछ नहीं है. आप अगर देखेंगे, सोचेंगे, उसको पकड़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि यस एग्रीकल्चर कॉलेजेस भी आए, होने चाहिए थे, क्या नहीं हुआ. वंस यू सी इट क्रिटिकली यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट एंड एनालाइज इट. मूविंग फर्दर, सो मोर बी implement key learnings. तो क्या हो सकती है की learnings? Not only just we are talking about compensation. Key learnings will include that there must be inspection, there must be fitness certificate, there must be close coordination with the local organization, there must be role of the state organization, there must be role of the disaster management, there must be role of a clear cut rules and procedures which must not be have shortcut. That is what is required. की लर्निंग्स की अगर एग्जामिनेशन में बात आती है, एक बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप बड़े बड़े सारे टर्म्स ले आएंगे, चाहे फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, चाहे फिर वो इकोनॉमिक है, चाहे फिर वो पॉलिटिकल है. इसी तरह से जब बात होती है कि माइनॉरिटी टैग दिया जाए हिंदूज को, हिंदू शुड बी टाइड गिवन टैग ऑफ माइनॉरिटीज इन द स्टेट्स वेयर देयर इन माइनॉरिटी. तो ऐसा होना चाहिए? बताइए ऐसा होना चाहिए क्या? तो ऐसा नहीं हो पाएगा. गवर्नमेंट इज वेरी सेंसिटिव, गवर्नमेंट इज सेंसिटिव, इट इज टेकिंग, इट इज अ सेंसिटिव मैटर. Center cannot notify anyone as minority when we talk about the TMFI case. सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट था 2002 में.
सेंटर कैन नॉट नोटिफाई एनीवन एज माइनॉरिटी. वट एवर डेलिब्रेशन इट मे बी होल्डिंग, वो सब डिबेट होल्ड कर सकती है ओनली अंडर द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992, और वो किसी पे कंफर्म नहीं कर सकता. सुप्रीम कोर्ट ने बोला that for the purposes of article 30, article 30 आपको पता होना चाहिए, article 30 part of the fundamental rights which deals with the rights of the minority to establish and administer their educational institutions, वो डील करता है उससे. In that case it has to be seen that religious and linguistic minorities का वो भी they have to be identified at the state level. जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि वी हैव डन कंसल्टेटिव मीटिंग विद द स्टेट गवर्नमेंट यूटी, और सबको लिखा, हमने सबको लिखा है, सबसे हमने बात की है. सम स्टेट्स ने रिक्वेस्ट किया है और टाइम मांगा है, हम क्या बोलें, स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्टेड अर्जेंसी या मैटर की तो जल्दी बताइए, लेकिन उन्होंने फिर भी थोड़ा टाइम मांगा है. 14 स्टेट्स इट इज सेइंग कि उन्होंने तो बोला दे हैव फर्निश्ड देयर व्यूज, बाकी 19 बचे हुए हैं, 19 स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूटीज. सो द अर्लीस्ट इफ दे कम ओवर देन वी विल टॉक अबाउट इट. सो मैंने आपको दो मुद्दे बता दिए, आर्टिकल 30 क्या कह रहा है, टीएमएफआई केस क्या कह रहा है, सरकार क्या कह रही है. आप सोचिए इस बारे में, और इस विषय में सोचेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ पल्ले पड़ेगा. दैट्स फॉर श्योर. It's all about raising the bar, it's all about thinking, it's all about discipline, it's all about making things simpler. Now, there was a Dalit Bandhu scheme. Beneficiaries were there, and the beneficiaries wanted SUVs, cement mixtures, and so on. But did the state government thought about, are they really going to benefit them? आपने उनको ऑफर तो दे दिया. Now the question is being raised by the opposition कि उनको ऑफर देने के बाद भी they are actually not able to utilize it properly. क्या उनके लिए वो इनकम जनरेशन का सोर्स है? क्या उनके लिए वो सोर्स बना कि वो उनको दो पैसे दिला पाए? उन्होंने अर्टिगा ले ली, या उन्होंने सीमेंट मिक्सचर ले लिया, या उन्होंने टेंट हाउस ले लिया. सो दिस इज वंडरफुल that state government come out with such schemes. It is wonderful that political representatives have their own ideas. क्या इसमें आपके हिसाब से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एसडीएम या किसी का कोई रोल हो सकता है, या वेलफेयर कमिश्नर, डेवलपमेंट कमिश्नर क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं? एनजीओ को रोपिन कर सकते हैं? कुछ सिविल सोसाइटी के लिए कर सकता है? बहुत मगजमारी है, बहुत सरदर्द है, लेकिन देन दैट्स हाउ इट हैज टू बी सीन. इट इज नॉट वेरी इजी to do things, except all, in spite of all the resistance, you have to move on. So that is why, that's fine, but this is a good approach, good start, but then we have to see कि वो स्कीम वाकई फायदा करेगी भी या नहीं करेगी. Greater Noida is played the host to the president, and obviously UPCM भी वहां आए, and the question and the point was water, water summit. Water can be used as a weapon when the security, when the water insecurity arises. It will be very very difficult task. इसीलिए पानी का बचाना, पानी का उचित प्रयोग, पानी का सोचना बहुत जरूरी है. लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, फ्रॉम द क्लास 1 टिल ग्रेजुएशन, निशुल्क शिक्षा. तो इट्स अमेजिंग स्कीम. इट विल मेक अ डिफरेंस बट इन द कमिंग ईयर्स. एंड देन ग्रेजुएट, इफ यू आर टेकिंग एडमिशन इनटू ग्रेजुएट, स्नातक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लोगे तो 25,000 की प्रोत्साहन राशि. दैट्स एन अमेजिंग थिंग. दैट्स हाउ थिंग्स चेंज. सो आपको समझना है कि ये चीजें कितना फर्क लेके आ रही हैं. फिर ये नहीं कि ये ठीक से हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ वो भी देखने वाली बात है, लेकिन फिर भी, एज आई जस्ट टोल्ड यू, वाटर रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड एज अ वेपन बाय एनी नेशन. शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज. हम, आप देखो एटलस खोलो, देखो चाइना से हमारे पास क्या आ रहा है, पाकिस्तान में कौन कौन सी रिवर्स जा रही हैं. बस आराम से बैठ के देखो. टू टेक सम टाइम, बट देन इट विल बी इम्प्रिंटेड इन योर माइंड इफ यू टेक आउट सम कीवर्ड्स फ्रॉम देयर. Now, when we talk about the general studies prelims paper, there are questions on Indian revolutionaries and Indian social workers. Social workers से मेरा मेरा मतलब है social reformers. तो अब यहाँ हम बात करते हैं मानगढ़ धाम. तो मानगढ़ धाम कहाँ है? ये है आपका मानगढ़ धाम, आपका बांसवाड़ा. बांसवाड़ा इज इन राजस्थान. तो बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम जो है ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया, जो कि ट्राइबल सैक्रिफाइसेस और ट्राइबल नेशनल मूवमेंट में ट्राइबल्स के रोल के लिए बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल है. सो द हिस्ट्री ऑफ मानगढ़ इज रिटन इन गोल्डन लेटर, जैसा कि कहा जाता है.
लेकिन उसके उसके जो है जैसे जम्बू घोड़ा में उन्होंने जो है रूप सिंह नायक और संत जोड़िया परमेश्वर, ये दोनों नाम आप देखिए, लोकल ट्राइबल रिवोल्यूशनरीज हैं, रूप सिंह नायक एंड संत जोड़िया परमेश्वर। उन्होंने जो है सफर किया, उन्होंने जो है सेक्रीफाइस दिए, तब जाके हमें ये आज़ादी जिसकी हम बात करते हैं वो हमें मिली है। तो देखने वाली बात यह है कि जनजातीय गौरव दिवस जैसे भारतीय सरकार बनाती भी है, लेकिन जैसे सर गोविंद गुरु, भील फ्रीडम फाइटर थे गोविंद गुरु, राजस्थान के बांसवाड़ा में वो भी थे। तो इनके बारे में और हमें जानना चाहिए, जितना यहाँ था मैंने आपको बताया। वो नेशनल मॉन्यूमेंट नहीं है, बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू, सो दिस वाज वन पॉइंट कि ये हमें और भी अननोन चीजें पता होनी चाहिए। पहले एनसीईआरटी हमें देखनी है, उसके बाद हमें जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है उसे देखना है, फिर हमें आगे जाना है। So it has to be done in a very fast and swift manner, and then we will be able to pick up. कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स मस्ट रिस्पेक्ट नेशन सोवरेनिटी का मतलब क्या हुआ, चाहे फिर वो आपका वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, चाहे फिर वो आपका चाइना का बीआरआई जो प्रोजेक्ट, जैसे मैंने बोला, दूसरा काराकोरम पास से जो चाइना जो पाकिस्तान का जो कॉरिडोर जो बनने की बात है उसकी हो। दैट्स व्हाट इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेज, दैट वी दे मस्ट रिस्पेक्ट सोवरेनिटी। हमारे से पास होकर नहीं जाना चाहिए, जो डिस्प्यूटेड एरिया जो हमारा एरिया है वो हमें मिलना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए वहां से। ये एक सोचने वाली बात है। म्यूजिक क्या कहता है, दैट जो कहा नहीं जा सकता, म्यूजिक म्यूजिक एक्सप्रेसेस दैट विच कैन नॉट बी सेड एंड ऑन विच इट इज इम्पॉसिबल टू बी साइलेंट। फिर से समझिए, म्यूजिक एक्सप्रेसेस दैट विच कैन नॉट बी सेड एंड ऑन विच इट इज इम्पॉसिबल टू बी साइलेंट। कितनी बड़ी बात कही है। तो बात बात यही है, ब्राजील जो है वो फिर से जीता। ब्राजील में लूला, एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो इन माय प्रीवियस लेक्चर, कि वो दोबारा आए। वो जो है एक नया उन्होंने एक फिनोमिना दर्शाया, बट देन इट इज नॉट विदाउट डिविजिव टेंडेंसीज, इट इज नॉट विदाउट राइज ऑफ द राइट, इट विल बी एन इंडिपेंडेंट एंड एन असर्टिव फॉरेन पॉलिसी। बिल्कुल सही बात है। एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन प्लस पॉइंट रिफ्लेक्ट किया। ब्रॉड कोएलिशन इज रिफ्लेक्टेड ऑफ द डिफरेंट पीपल। एक क्लासिकल पॉलिटिशियन है लूला, ही इज ऑफ ए वेरी वेरी एम्पैथी, ही इज गॉट वेरी हाई एम्पैथी। एक मशीन वर्कर जो यूनियन पॉलिटिक्स में आए, उसके बाद उन्होंने जो है टॉर्चर और टोटलिटेरियन रिजीम्स को बहुत क्लोज से देखा है। ही हैज great ability to make friends with others, he will mingle with others, he will not speak political language, but he will be speaking the language of friendship. So coalition building, he's a master of coalition building. And then most importantly, he is he is the reflection of the classical politician जिसको हम कहते हैं। तो तो ये सारे स्किल्स जो है ब्राजील को हेल्प करेंगे। अमेजन फॉरेस्ट आर बीइंग डिप्लीटेड, उसको रोका जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन अब डिस्ट्रीब्यूशन जो रिसोर्सेज का होना चाहिए वो रीडिस्ट्रीब्यूशन के तरीके से होगा। एंड उसके लिए भी लेकिन पीछे एक मार्केट फोर्स चाहिए होती है। राइट विंग ऑलवेज प्रमोट्स मोर मार्केट विंग, मेजोरिटी आइडियाज को प्रमोट करता है, ग्लोबल ग्रोथ को भी बढ़ाता है। लेकिन अब जो है, अब चैलेंजेस जो होंगे प्रेसिडेंट के पास वो पहले से ज्यादा होंगे। जैसे इंडिया में है एमएनआरईजी है, या फिर जो है आपका पीडीएस है। तो जो अभी पावर में थे, राइट विंग वाज इन पावर, उसने भी उन चीजों को एम्ब्रेस कर लिया था, बट देन इट ट्विस्टेड। इंडिया के केस में आप ऐसा नहीं कह सकते। इंडिया के केस में तो एमएनआरईजी हो गया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्न हो गया, या फिर बाकी चीजें भी, या आयुष्मान भारत स्कीम भी हो गई, जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हुआ करता था। देन वी हैव ऑल्सो, बट देन वी आर नॉट कंपेयरिंग, बट देन बोल्सोनारो, he went after the leftist and बुरी तरह से उसको कुचला उन्होंने। and then especially in pandemic many million people died। इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। तो सोशल फोर्सेस जो रिप्रेजेंट करते थे बोल्सोनारो, दोज वर नॉट वेरी वेरी दे वर पोलराइज फोर्सेस, एक तरीके से हम कह सकते हैं। पोलराइज का मतलब है कि वो वुमेन हो गए, मार्जिनलाइज सेक्शन हो गए, या जो जेंडर के आइडियाज हो गए, उसको साइडलाइन करने की बात होती थी। वायलेंस, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गया वायलेंस। तो वायलेंस अभी भी है और वो एकदम से कम नहीं होने वाला, वो हटेगा। कल्ट ऑफ वायलेंस इज ऑलवेज देयर। जैसे क्राइम इज अ वे, क्राइम इज अ वे, अगर हम पॉलिटिकल साइंस के एंगल से कहें तो क्राइम हैज बीन अ वे टू प्रमोट आइडियोलॉग्स एंड आइडियोलॉजी। जैसे हिंदू मुस्लिम राइट्स अगर हम इंडिया के केस में बोले, allegedly बाय सर्टेन ग्रुप्स, वो प्रमोट करते हैं। तो दैट इज हाउ इन ब्राजील ऑल्सो। सो इट इज अ लेजिटिमेट प्रोसेस था, बहुत अच्छा रहा, एंड दैट इज व्हाट वी कैन से। वंस वी टॉक अबाउट सेंटर्स कि फिस्कल पॉलिसी, जो फिस्कल पोजीशन है प्रेजेंटली, इफ यू टॉक अबाउट, इन लास्ट लेक्चर आल्सो वी हैव डिस्कस्ड दिस, दैट
डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों बढ़े, बहुत अच्छी बात है. बट एज आई टोल्ड यू, in spite of the raise in the direct and indirect taxes, there have been expenditures, and expenditures have been both anticipated expenditures and unforeseen expenditures. So collection is very high, that is fine, but then there has been capital expenditures by ministries, by infrastructure, by key ministries like railways, by transport, highways, and so on. So that is why overall जो capital expenditure है, that is very very demanding right now, and higher budget spending on the way of food, fertilizer, that is also going to make a difference as far as subsidy is concerned. So it is very very challenging in the coming time, though corona is more or less, it is past, but then new challenges have emerged. आशा वर्कर की बात करें तो आशा वर्कर को कोई भी शी इज नॉट सीन एज अ वर्कर, शी इज नॉट सीन एज अ फॉर्मल वर्कर, शी इज नॉट सीन एज अ one having rojgar, she's seen as a casual worker, she don't have income stability, she is just being given around अगर हम बात करें तो हर जगह अलग अलग है, उनको जो है 5 से 8 हज़ार के बीच में मिलता है, बट शी हैड प्लेड क्रिटिकल रोल इन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ डिलीवरीज, क्रिटिकल रोल इन इम्यूनाइजेशन, क्रिटिकल रोल इन पेंडेमिक, क्रिटिकल रोल इन integrated child development services, critical role in promoting a very very welfare oriented atmosphere at the village level. तो आपके हिसाब से क्या उनको नहीं चाहिए कि उनको सर्विसेज मिले? उनको फिर क्वेश्चन ये उठता है कि भाई उनको अब तक जो है एक एक रिकॉग्निशन क्यों नहीं दिया गया? उनको उनको टाइम मैगजीन ने दे दिया गार्जियन ऑफ द ईयर, बट देन उनको रिकॉग्निशन, जो इकोनॉमिक रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, वो क्यों नहीं मिला सरकार की तरफ से? या उनको सोशल सिक्योरिटी जैसे मिलनी चाहिए, वो क्यों नहीं मिला? उनको हीलिंग टच क्यों नहीं मिला? सोचिए, मैं भी सोच रहा हूँ. आंसर देखते हैं क्या आता है. Rajbhavan, Rajdharm. So not just first time we are talking about it. Already we have spoken about it a lot of times. But then good governor should be a broken leg and keep at home. Good governor की एक टांग टूटी होनी चाहिए और घर में बैठा जाना चाहिए. कहने का मतलब ये है कि he must be a sagacious person. He must be the person who should not be speaking nonsense. He is there only as a consultant, only as a sage, only as a person who is wiser than the government, only as a person who will be using his discretion only when it is required. Not he is poking the government again and again. Definitely everything is at the pleasure of the governor, but then it is by the aid and advice of the chief minister. सिंपल सा लॉजिक ये है. तो मैं केस स्टडी में नहीं जा रहा हूँ कि आरिफ मोहम्मद खान क्या बोल रहे हैं. कुछ न कुछ का केस चलता है. कभी आरिफ मोहम्मद खान साहब होते हैं, कभी कोश्यारी जी होते हैं, कभी झारखंड के होते हैं, कभी पंजाब के होते हैं. ये गेम तो चलेगा. बट द क्वेश्चन इज दैट इंग्लिश जज सर एडवर्ड कुक, उन्होंने ग्रेटेस्ट जूरिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि डिस्क्रिशन का मतलब होता है साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू डिस्क्रीन बिटवीन फॉल्सिटी एंड ट्रूथ. फॉल्सिटी और ट्रूथ के बीच में आपको पता होना चाहिए, बिटवीन रॉन्ग एंड राइट पता होना चाहिए, बिटवीन शैडो एंड सब्सटेंस पता होना चाहिए. ये होता है डिस्क्रिशन का मतलब. लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि भाई अपनी मर्जी से प्राइवेट अफेक्शंस उनको आप हाँ या ना में कन्वर्ट कर दो. दैट इज नॉट डिस्क्रिशन. एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लास्फेमी. एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लास्फेमी. यानी अगर जैसे मैं आपको कह दूं कि आपके पास डिस्क्रिशन है कि जान लगा के पढ़ो, और आप मेरी भावना समझने के बाद भी जान लगा के नहीं पढ़ते हैं, तो आप एक तरीके से पाप कर रहे हैं, ब्लेस्फेमी कर रहे हैं आप. अगर आपको समझ नहीं आ रहा है और नहीं पूछ रहे हैं, तब भी आप ब्लेस्फेमी ही कर रहे हैं. और अगर आप समझ आ रहा है फिर भी आप नहीं कर रहे, फिर भी आप ब्लेस्फेमी ही कर रहे हैं. तो आना भी है और करना भी है. डिस्क्रिशन का मतलब वही है, इट इज टू बी डन विद कॉशन एंड रीजनेबल मैनर. वो तो दिख नहीं रहा वहां पर. दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड. द गवर्नर्स पावर्स आर ईदर डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी. यू नो. तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिस्क्रिशनरी पावर्स का मतलब ये नहीं है कि दैट इट कैन डू वट एवर डू, दैट इज माई डिस्क्रिशन. सो आर्टिकल 163(1), Article 163 clause 1 says the council of ministers, the chief minister at the head, is to aid and advise the governor in the exercise of his functions, except in the circumstances when he will be required to use his discretion. The circumstances arise होने चाहिए ना. Article 164(1), where the discretion of the governor is about the appointment of the minister. This appointment, as Article 164(1) mentions, has to be strictly on the advice of the chief minister. अब आप टेक्सचुअल पैराडाइज से देखोगे, द मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, तो आपको लगेगा वाह भैया गवर्नर साहब बताएंगे क्या होगा. तो गवर्नर के कोई इंडिपेंडेंट पावर्स नहीं है टू अपॉइंट एनी मिनिस्टर. ही हैज टू गो स्ट्रिक्टली एज पर द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर. द कॉन्सेप्ट ऑफ एड एंड एडवाइस is fundamental to the Indian constitution. These ideas have come from the UK, British parliamentary system.
गवर्नमेंट इज ए डी ज्यूरे, डिफैक्टो नहीं है वो, डी ज्यूरे टिटुलर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। जैसे आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो डी ज्यूरे नहीं कर रहे हैं, डी फैक्टो कर रहे हैं। दैट इज हाउ इट इज। डे टू डे गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में आपका रोल नहीं हो सकता, गवर्नर साहब का रोल नहीं हो सकता। दिस इज द रेशनल अडॉप्टेड। यूएस नहीं है ये। यूएस में पोजीशन ऑफ द गवर्नर, ठीक है ना, वहां पर क्या है, वहां पर डिफरेंट है। वहां पर जो है इलेक्टेड है, यहाँ पर नॉमिनेटेड है। सो नाबम रेबिया केस 2016 में चीफ जस्टिस लेड बेंच सेड दैट एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर बाय द गवर्नर इज बाय एंड लार्ज नोशनल। नोशनल है, नाम नाम की है। द ऑफिस ऑफ द गवर्नर हैज बीन टाइम एंड अगेन डिस्क्राइब्ड एज टिट्यूलर। हरि विष्णु कामत, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उन्होंने तो अमेंडमेंट भी किया था टू डू अवे विद द डिस्क्रिशनरी पावर अंडर द प्रेजेंट डे। अभी जो है कहा था कि इसको हटा दो ड्यू टू द नॉमिनेटेड नेचर ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर। क्योंकि उन्होंने कहा था डिस्क्रिशनरी पावर आप दोगे, इट विल अंडरमाइन द टेनेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट। उन्होंने कहा था कि भाई डिस्क्रिशनरी के नाम का लेके आप जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट को हिलाने की कोशिश करोगे, जैसे कि हमने एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में देखा। 5 जज बेंच ने कहा, उस टाइम भी सीजीआई ने बोला दैट वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारी, यूके से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया है, लेकिन इसका मतलब ये है कि रियल पावर इज विद द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड द गवर्नर इज जस्ट अ नॉमिनल हेड। ही इज रेनिंग नॉट रूलिंग, जैसे प्रेसिडेंट है। द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी वाज द कोर वैल्यू ऑफ इंडिया रिपब्लिक। दैट इज व्हाई अंबेडकर सर ने क्या बोला, आर्टिकल 163 क्लॉज 1 इज अ वेरी लिमिटेड क्लॉज, द क्लॉज वाज नॉट जनरल वन। वो जो है पावर नहीं देता गवर्नर को एडवाइस, मिनिस्टर की या चीफ मिनिस्टर की एडवाइस को डिसरिगार्ड करने की एडवाइस नहीं देता। दैट इज व्हाई केशवानंद भारती केस 1973, उसमें बोला गया कि रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया की। दैट इज हाउ इट इज, इंडियाज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज, इट इज अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रोल एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नर आर ओनली टू द एक्सटेंट वेयर ही इज एडवाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एक्सटेंट बता दिया ना। सो डिस्क्रिशनरी पावर आर यूज्ड टू बी यूज्ड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, नॉट एवरीवेयर। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन सी है, प्री पोल अलायंस के बाद क्या निकल के आ रहा है, सरकार गिर गई है, आर्टिकल 356 की बात आ रही है, तब बात आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। सो दैट इज हाउ व्हाट वी कैन से। इन अगेन वन मोर आर्टिकल इज गिवन हियर, आर्टिकल इन शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस के अंदर अपेक्स कोर्ट सेड वी आर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड गवर्नर शुड आइडियली बिहेव जस्ट लाइक ब्रिटिश मोनार्क। तो इतने एग्जांपल काफी है, वंस फॉर ऑल, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। अब सिर्फ एग्जाम्पल के एंगल से अगर आप देना चाहें तो ये दे सकते हैं कि जैसे गुजरात में जो 2 रिसेंट प्रोजेक्ट्स गए थे, टाटा एयरबस जेवी गया, उससे पहले जो वेदांता वाला प्रोजेक्ट था सेमीकंडक्टर चिप्स मेकिंग कंडक्टर, वो जो प्रोजेक्ट, दो दीज 2 प्रोजेक्ट्स दैट हैव गॉन टू गुजरात। वी आर नॉट गोइंग टू राइट वेरी डिटेल अबाउट इट, लेकिन पॉइंट ये है दैट इट शोकेसेस दैट इन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म, इट शोकेसेस पॉलिटिकल political narrow-mindedness. It may harm federalism in some way in the longer run. It may not help the political parties to meet their ends in the longer run. It is a wrong idea that if I want to win an election in certain party, in a certain state, then only things will happen. It may be wrong. That's what we have to understand. So ये एक हम जनरल स्टडीज पेपर 2 की जब हम किसी क्वेश्चन की बात करेंगे, मेंस की बात करते हैं, तब हम शायद कहीं ना कहीं इसको यूज कर पाए। आपको देखना पड़ेगा महाराष्ट्र जब आया, गुजरात जब स्टेट बना, तो उसके बाद कैसे पॉलिटिक्स आई, मोरारजी देसाई का रोल क्या था, आप देखिएगा, गूगल करके देखना। तो ये बात सोचने वाली है, जो अभी वो फॉक्सॉन वेदांता के केस था, और दूसरा मैंने जैसे आपको कहा टाटा एयरबस जॉइंट वेंचर। अब मैं बात करूंगा जे जे ईरानी सर की। तो जे जे ईरानी सर जो टाटा नेस रिफ्लेक्ट करते थे। So what is Tata Ness? Tata Ness is discipline. Tata Ness is simplicity. Tata Ness is humbleness. Tata Ness is to the point. Tata Ness is not being fearful. Tata Ness is that must take accountability of actions what you're doing. Tata Ness is being firm. Tata Ness is being empathic. Tata Ness is reflecting the idea that what is demarcation between office life and the home life. Tata Ness is not running after money. Tata Ness is to create wealth. That is what we are also trying to do, to create wealth of intellectualism to the wealth of success in civil services. That is what is Tata-ness. Tata-ness is the circumstances not to create an
just mindless industry. Tata helped in creation of ancillary industries in Jamshedpur. One of my student can even watch for it. जो मेरे कुछ स्टूडेंट्स इवन जमशेदपुर में जैसे एक है, इवन उसके अलावा भी हु आर इन झारखंड, दोज हूम आई हैव टॉट नंबर ऑफ टाइम्स, वो भी इस बात को वॉच करेंगे कि उनके वहाँ लोकल इंडस्ट्रीज वो हुई कि नहीं हुई, लोकल एरिया जो डेवलप हुए जमशेदपुर के चारों तरफ, या इवन हम अगर पूरे के पूरे झारखंड की बात करें, वो है टाटानेस. टाटानेस इज अबाउट दैट. टाटानेस इज नॉट अबाउट ओनली क्रिएटिंग मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज. दैट इज वाई ईरानी साहब के जो फ्यूचर जनरेशन हैं, दे हैव बीन गिवन, दे आर नाउ लिंक्ड विद टाटाज ओनली, they are on board. Tata-ness is reflected by J.J. Irani sir when he started working at the age of 17. Tata-ness का मतलब है पीस ऑफ माइंड, जो कि आजकल बहुत मुश्किल है. जो भी आपने किया लास्ट में आपको पीस ऑफ माइंड मिला कि नहीं मिला. पैसे भी चाहिए लेकिन पीस ऑफ माइंड भी चाहिए. दैट इज हाउ इट इज. Tata-ness is about future thinking, and these are all values, these are all ideas. They will be linked with ethics paper. They will be linked with even ideas of an ideal civil servant. That is what is Tata-ness. India has a big role in Bangladesh political stability. So go back to our previous lectures and go check when the Bangladesh Prime Minister visited India, तो हमने कितना सब कुछ किया था. So do you link those ideas with the political stability in Bangladesh? Please go and cross check. तो आपको 2 सेकंड में इस बात का आंसर मिल जाएगा. आपको याद भी होना चाहिए. That's why I always say revise and make your own notes. तो आयरन स्टील मैन, जैसे मैंने अभी जो मैंने टाटा साहब की जो मैंने बात की, उनकी जो मैंने बात की, जो मैंने बताया आपको कि वो जो है जैसे आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया इन जमशेदपुर, दैट इज व्हाट इट इज आई वाज टॉकिंग अबाउट. द नेम इज हियर. कल्चर, वर्क कल्चर दैट ही क्रिएटेड. एबिलिटी टू हेल्प लोकल एंटरप्रेन्योर्स. कहाँ होता है ऐसा? लो प्रोफाइल, हम्बल पर्सन. कोई बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखी, कोई सोशल मीडिया नहीं बनाया, सिर्फ काम किया. दैट्स हाउ इट इज. स्टेटस चेक बिफोर COP27. राइज इन ग्लोबल एनुअल मीन टेम्परेचर कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल टाइम. देख लीजिए आप, 1990 में कितना था, 0.45, और 2021 में देख लीजिए कितना है, 0.85. चेंज इन द एमिशंस 2020 वर्सेस 1990 देख लीजिए आप. वर्ल्ड का देखिए, चाइना का देखिए, EU का देखिए, आपके सामने ग्राफ है. ग्राफ देखना सीखिए, पेपर नहीं निकलेगा, मेरे ग्राफ सिखाने से नहीं होगा, आपको खुद दिमाग लगाना होगा. ग्रीन हाउस गैस एमिशंस ईयर बाय ईयर इन मिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट, आप देखिए 1990 2019. एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैक्सिमम टेम्परेचर राइज 2030 में कितना, 2050 में कितना. 1.8 डिग्री तो 2030 में कितना, 20 और 2050 में कितना, 2030 2050, 2030 2050, 1.5 डिग्री if it is having, then also 33 see billion tons of CO2, and then it will be 8 emission should be like that. नहीं तो बात नहीं बनेगी. तो rise of temperature is linked with the emissions. Current 51 billion tons. Best case scenario 2030 में 52. Very difficult, very difficult. So this is by the emission gap report. Impact of Ukraine war, inadequate response and inadequate funding. कैसे होगा, टारगेट भी मीट करना है. So please go for this graph and understand it. You can take a screenshot and work on it. अगर साइंस एंड टेक में PT की बात करें तो कोरोनल होल्स, वो सन के सरफेस जहां पर जो है सोलर विंड्स गशिश आउट होते हैं स्पेस के अंदर, उसको हम कहते हैं कोरोनल होल्स. क्योंकि उनके अंदर सोलर मटेरियल बहुत थोड़ा होता है एंड दे हैव लोअर टेम्परेचर, इसलिए वो डार्क होती हैं बाकी सराउंडिंग से. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ओपन हो जाती है इंटरप्लेनेटरी स्पेस के साथ साथ, और जो है सोलर मटेरियल बाहर की तरफ जाता है हाई स्पीड में. कोरोनल होल्स जो है कुछ हफ्ते तक रह सकते हैं, कुछ महीने तक भी रह सकते हैं. तो कोरोनल होल्स आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्पेस इन्वायरमेंट अराउंड द अर्थ. क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे सैटेलाइट्स, हमारे एस्ट्रोनॉट जो सब ट्रेवल करते हैं, coronal holes are covering 6 to 8% of the total sun surface, total solar surface I can say. So ये एक तरीके से क्या है, फास्ट सोलर स्ट्रीम्स हैं जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से अगर इंटरेक्ट करेंगी तो उससे जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म आ जाएगा. इससे हमारी सैटेलाइट, हमारा जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम उससे इंटरफेयर हो जाएगा. दैट इज व्हाट इज जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म. अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर से जुड़ जाता है. सो हाई स्पीड सोलर स्ट्रीम अगर आती है अर्थ के ऊपर,
वो एक एनर्जेटिक सोलर पावर विंड पार्टिकल्स की तरह आके एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करती है पोल्स पर। स्ट्रॉन्ग सोलर विंड, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म, तो उससे चेंज आएगा आइनोस्फेयर में। उससे आइनोस्फेयर में चेंज आने का मतलब है दैट रेडियो, जीपीएस सिग्नल, सैटेलाइट सिग्नल्स, कम्युनिकेशन जो मैं आपसे जैसे बात करके आपका आएगा वो सब डिसरप्ट हो जाएगा। गो फॉर दीज कॉन्सेप्ट्स एज अ पार्ट ऑफ बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ब्लैक सी, प्लीज गो एंड चेक इन द एटलस। ब्लैक सी आसपास क्या क्या है? व्हाट इज द रूट? यूक्रेन से जब शुरू होता है ग्रेन एक्सपोर्ट थ्रू सी, देन व्हाट इज द रूट इट इज टेकिंग, हाउ दैट हैपेंस, हाउ रशिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट, एंड व्हाट इज जो ब्लैक सी डील की कि मैं अलाउ करूंगा टू अलाउ द ग्रेन्स टू पास, तो कहां से करेगा बताइए? फॉर एग्जाम्पल 30,000 टन को कैरी करके एक शिप जो है इथियोपिया के लिए निकला, उसके पीछे पीछे एक डजन ऑफ शिप्स विल मूव ऑन इथियोपिया along with neighboring सोमालिया, कीनिया, वो सब बैडली अफेक्टेड रीजन्स हैं थ्रू ड्राउट्स इन डिकेड्स, वहां पर पहुंचाना है। सो दैट्स हाउ इट इज। फिर ओडिशा जो रीजन है, ओडिशा रीजन इन यूक्रेन, जो पूरा मतलब ये है, एंड टर्की का भी रोल है इसके अंदर, टर्की इंटरवेंशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो टर्की, यूक्रेन, रशिया, और जा कहाँ रहा है? अफ्रीका। तो रशिया हैज सपोर्टेड कि पूरेस्ट कंट्रीज के लिए, आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप इट। सो दैट इज व्हाट इज सीन एज कि फूड को आप वेपन की तरह यूज कर रहे हो, आप हंगर गेम्स खेल रहे हो। सो दैट्स हाउ व्हाट वी हैव टू सी। फ्रांस में एक बहुत अच्छी बात हुई दैट फॉर यंग चिल्ड्रन दोज हु कैन नॉट इवन ट्राई टॉक अबाउट अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, those who cannot talk about sexual abuse by with their parents and with the school and all that, उनको बोला बोलो मत, आप लिख दो। बहुत अच्छी बात की। if you can't say it, write it, started by one of the officers, so it is one of the good ways, writing makes a difference। कुछ ऐसे इनोवेटिव आइडियाज यहाँ भी वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन सिक्योरिटी के लिए यहाँ भी किए जा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, पहले भी हमने बात की थी। मैनेजिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स वो बताता है अगर वो बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, घट रहा है तो गड़बड़ है। कैपेसिटी प्रेशर कितना है, सप्लाई प्रेशर कितना है, डिमांड कितनी है, दैट वी कैन ऑलवेज मेक आउट फ्रॉम द परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। स्पिल ओवर ऑफ एक्शंस, कीवर्ड क्या है? स्पिल ओवर ऑफ एक्शंस। एक्शन, व्हाट आर द एक्शंस? कंजम्पशन इज द एक्शन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन इज एन एक्शन, तो उसका स्पिल ओवर है ये। दूध जैसे उबालते हैं तो गिर जाता है, दैट इज अ स्पिल ओवर एक्शन। तो रिच नेशंस के स्पिल ओवर एक्शंस है, पे हमें करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट वी आर जस्ट टॉकिंग। कैन यू नो, डू यू नो दीज टू प्लेयर्स? Satvik Sairaj, Ranik Reddy, and Chirag Shetty. Do you know the sport of which they are representing? And they have recently won, French Open. So they are badminton players, awesome players. तो मैंने चर्चा की पहले इस बात की, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाकी क्या क्या एलिमेंट्स हम उठा सकते हैं। So the next point I'm taking up, here it is. अभी मैंने बात की थी that how इंपॉर्टेंट रोल हैज बीन प्लेड बाय द ट्राइबल्स। तो अभी मैंने बात की, देखिए मानगढ़ धाम ये रहा हिस्टोरिकल साइट ऑफ अपराइजिंग, जहां पर 1500 ट्राइबल्स वर किल्ड बाय द ब्रिटिश, ओवर 1500 ट्राइबल्स वर किल्ड बाय द ब्रिटिश इन on November 17 1913। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन जम्बू घोड़ा की भी मैंने बात की थी। ट्राइबल एरियाज, दे ट्राइबल एरियाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So Mangarh, at Mangarh Dham, tributes were paid to Govind Guru, who led the uprising. Mangarh Dham. So that is what I just added couple of more points through newspaper only for general studies in a smart way, so that you can link it with your uh, you know uh, general studies notes.
नाउ मोरबी, मोरबी से हमने क्या सीखा? तो मोरबी ट्रेजेडी, 100-year-old Pamban rail bridge. Google it and just check it out. It is linking peninsular India to Rameshwaram Island. और रिवर चनाब के ऊपर जो हमने लिंक किया अभी, उधमपुर टू बारामूला, वो रेल के द्वारा, दैट इज ऑल्सो इंडिकेटर ऑफ सोसाइटीज कैपेबिलिटीज। इंडिया के पास करंटली 4.6 बिलियन टन ऑफ फ्रेट हमारा जो है मूव होता है। 70% इज ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक्स एंड 18% बाय ट्रेन। सो दिस इज द की जोग्राफिक फीचर। क्या की जोग्राफिक फीचर है? दैट वी हैव अ वास्ट टेरिटोरियल लॉजिस्टिक नेटवर्क। कोस्ट टू लैंड मास रेशियो इज वेरी लो। India's coast to land mass ratio very low. Land mass is having multiple rivers prone to annual flooding. 12% of India's area is prone to floods. इसीलिए bridge building is critical. Somebody ask you bridge सही क्यों होगा? तो this is the reason. Population is concentrated away from coast. इसीलिए land based transport पर हम ज्यादा dependent हैं. For example, in 2018 rail track length 67,368 किलोमीटर के अंदर जो है 1.47 लाख ब्रिजेस थे। 1.47 लाख ब्रिजेस, आप सोचिए, 1.5 लाख ब्रिज है भारत। वो भी बहुत सारे तो दे आर एग्जिस्टिंग फ्रॉम 100 years। सो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम, ताकि हमारे ब्रिज की इंफॉर्मेशन हम करेक्ट कर सके। नाउ दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर क्वालिटी मेंटेनेंस। रोड एंड ब्रिजेस का जो है खर्चा क्लब किया जाता है। गवर्नमेंट हैज इवन फाउंड ए पार्लियामेंट्री कमेटी टू चेक अंडर स्पेंडिंग तो नहीं हो रही है रोड के ऊपर ब्रिजेस की तरह। मतलब ब्रिज की अंडरस्टैंडिंग भी चेक करनी पड़ेगी रोड की तरह। दैट्स व्हाट आई शुड से। सो टेक्नोलॉजी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यूज ऑफ स्टेनलेस स्टील कोस्टल एरियाज में यूज किया जाता है। एंड रेलवेज विच स्टिल यूज हिमालयन रेल ब्रिजेस, दे आर डिजाइन्ड ऑन रोमन aqueduct method. Roman aqueduct method. So I would request you to please check what is Roman aqueduct method. और यूज ऑफ ड्रोन्स हम यूज करने लगे हैं ब्रिज को एक्सपेंड करने के लिए। ओवरसाइट इंक्रीज करेगा मॉनसून के टाइम में। जैसे अभी हमने बोगी बील ब्रिज, फोटो जरूर देखिएगा अपने आप, ओवर रिवर ब्रह्मपुत्र। सो व्हाट इज लैकिंग इज गवर्नेंस इन ऑपरेशंस। दैट हैज टू बी चेंज। जो हमने कहा था ना लेसन क्या सीखेंगे, अभी मैंने आपसे बात की थी, तो ये हम लेसन सीख सकते हैं। सेकेंडली, इफ आई अगेन टॉक अबाउट IMF पैंडेमिक, सो इंडिया इज गोइंग टू हैव रोटेशनल प्रेजेंस ऑफ G20, बात कर चुके हैं। इंडिया इज गोइंग टू हैव एजेंडा, वो भी एजेंडा सेट करेगा। इंडोनेशिया इज करंटली द कंट्री, इट इज फोकसिंग ऑन ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर, सस्टेनेबल एनर्जी transition and digital transformation. Italy in 2021 focused on people, planet and prosperity. अब इंडिया क्या करेगा? इंडिया के पास तो ओवर राइजिंग एजेंडा है। पुअर कंट्रीज को भी वो कलेक्टिव आइडेंटिटी को शो करता है। मिक्स ऑफ कंट्रीज एंड रिच एंड पुअर के इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म भी है। 2/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन एंड 80% ऑफ द ग्लोबल GDP को दिखाता है। बट विद जस्ट 20 मेंबर्स इट एक्सक्लूड्स लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज, स्पेशली द पुअर कंट्रीज। इंडिया का तो हमेशा से ग्रीवेंस रहा है दैट इट हैज बीन नॉट पार्ट ऑफ द ग्लोबल क्लब्स। तो अब वो चेंज होगा। एक तरीके से इंडिया उसके लिए पिच कर सकता है। इंडिया शुड मेक कॉन्शियस एफर्ट टू स्पीक फॉर ऑल दोस पुअर कंट्रीज। यू नो, G20's poorest country कौन है? इंडिया। It is moral responsibility that the message must be in the favor of poorest of poor. So though first G20 failed to provide global leadership, pandemic में नहीं कर पाया वो। वायरस जो है वो मैन मेड बॉर्डर्स को रिस्पेक्ट नहीं करता। बट वी हैव स्पोकन अबाउट वैक्सीन नेशनलिज्म। मेरे पास पैसा, मेरे पास वैक्सीन, मेरा नेशन, तो वैक्सीन नेशनलिज्म, माय कंट्री फर्स्ट। ठीक है जी, इंडिया डिडंट फॉल फॉर इट। कन्वर्जेंस, वी हैव फोकस ऑन द कन्वर्जेंस ऑफ कंट्रीज, वो नहीं हुआ है। देन जियोपॉलिटिकल राइवलरी बिटवीन यूएस एंड चाइना, डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड वॉर्स, पेंडेमिक, रशियन इन्वेजन, तो इससे दो ब्लॉक्स में बट गया है। दो फाइनेंशियल सिस्टम हो गए हैं, 2 करेंसी ब्लॉक्स हो गए हैं, 2 पेमेंट सिस्टम हो गए हैं, 2 वर्ल्ड वाइड वेब हो गया है। भाई चाइना एक तरफ, पूरा वर्ल्ड एक तरफ, चाइना एक तरफ, करेंसी हो, इंटरनेट हो। So that is why globalization is a key thing, but it is never easy for the poor countries to manage it. So India should send a message, we are with you. इनकम लेडर में सपोर्ट करे, सिस्टम को बढ़ाने में मदद करे। क्रिप्टो करेंसीज फॉर एग्जांपल कैन बी यूज्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, टेरर फाइनेंसिंग। सो इंडिया में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज का इम्पैक्ट हो सकता है ऑन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सो ग्लोबल स्टैंडर्ड जब अभी हुआ था, वी हैव डन इन वन ऑफ आवर लेक्चर्स, रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसीज याद कीजिए, या बेसिक स्टैंडर्ड जो बैंकिंग के उनको भी याद कीजिए। सो इट इज नॉट इजी दैट एवरीबॉडी विल कम ऑन बोर्ड एंड एवरीबॉडी विल हैव द सेम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। सो रेगुलेशन की तरफ हम बात करेंगे। रेवेन्यू जनरेशन जो क्या क्रिप्टो ट्रेड से होगा वो भी रेगुलेट होना चाहिए, इससे माइलेज मिलेगी। मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल फ्लोज, मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल फ्लोज ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके लिए भी सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट होना चाहिए। लार्ज एंड वोलेटाइल कैपिटल फ्लोज आते हैं, वो देश रिसेशन में ले जा सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को जीवर्टाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, 2013 का टेपर टेंट्रम्स, आप करो गूगल टेपर टेंट्रम क्या होता है। और मोस्ट रिसेंटली यूएस फेडरल रिजर्व ने टाइट करना शुरू कर दिया इन्फ्लेशन के चक्कर में, इससे कैपिटल आउटफ्लो इंडिया से भागने लग गया। तो इसीलिए मैनेजिंग कैपिटल फ्लो स्टैंडर्ड एजेंडा आइटम होना चाहिए आईएमएफ की मीटिंग्स में और G20 में भी। एडवांस इकोनॉमीज मस्ट बी मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स, अभी मैंने पहला कहा था ना, स्पिल ओवर इफेक्ट, यहाँ पर भी वो वर्ड आ गया, देखिए अब आप। सो ब्रेकिंग दिस इम्पासे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉलर इज आवर करेंसी बट यूर प्रॉब्लम, ये नहीं होना चाहिए ना। डॉलर हमारी करेंसी है लेकिन प्रॉब्लम तुम्हारी है, ये एजेंडा नहीं चलना चाहिए। कोटाज ऑफ द कंट्रीज इन द आईएमएफ, तो आईएमएफ कोटा पे मेरा एक वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज मैं टेक्स्ट बुक में तो बताऊंगा ही आपको जब हमारी बात होगी कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसीलिए इमर्जिंग एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैव कंसिस्टेंटली आर्गूड देयर कोटा शेयर मस्ट बी इंक्रीज, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। एक और कॉज भी है, इंडिया मस्ट चैंपियन इस कॉज के अलावा कि जो है ग्लोबल ऑप्टिमल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होना चाहिए इंडिया को। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की बात नहीं की, मैं तो उसको भी बोलना चाहता हूँ। तो यानी यहाँ पर सुब्बा राव सर ने, बिकॉज ही इज अ फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई, सो सुब्बा राव सर ने जो आइडियाज दिए हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, उन्होंने सारी बातें लिखी है, वंडरफुली रिटन। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिबेट एंड क्वेश्चन इफ वी सी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जनरल स्टडीज पेपर 3 में। अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो जो है आपका आईआर में भी इसका मतलब रोल आ जाता है, जो हमने बात की। और जो मैंने कीवर्ड्स बोले, बहुत सारे पीटी के क्वेश्चंस में भी इनफैक्ट थिंकिंग में आजकल इस लेवल के क्वेश्चंस आने लगे हैं, विच वी हैव टू सी। टेल अवीव मॉडल, क्या है टेल अवीव मॉडल? यानी इसराइल के नए प्राइम मिनिस्टर जो बने अभी, बेंजामिन नेतन्याहू, वो आने वाले हैं। अल्ट्रा नेशनलिस्ट रिलीजियस जियोनिस्ट पार्टी, अल्ट्रा नेशनलिस्ट यानी नेशन फर्स्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, अल्ट्रा नेशनल, यू नो, अल्ट्रा वर्ड तब हम यूज करते हैं। रिलीजियस यानी जीव, उसके लिए वो सपोर्ट करेंगे। तो इजरायली स्टेट जो है वो, उसके फंडामेंटल सेम रहेंगे, उसका एफिकेसी है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम की। उसके पास जो है दूसरी बात, ये इंडिया इजराइल रिलेशनशिप इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। एट द एंड ऑफ 2021 25 बिलियन वाज रेज्ड विद इन द टेक्निकल सेक्टर, यानी कि फिर भी देखो कितना रेज कर रहा है। इंडिया फॉरेन पॉलिसी जो है उसमें इब्राहिम अकॉर्ड्स जो उन्होंने अभी साइन किए थे, यूएई बहरीन नेशंस, उनके साथ आप इब्राहिम अकॉर्ड्स को एक बार गूगल करके भी देख सकते हैं। उसकी बात है। उसके बाद जो है जो मिडिल ईस्ट के जो सिक्योरिटी डायनेमिक्स हैं, वो भी हम अलग से कभी चर्चा करेंगे, लेकिन जस्ट आई एम टेलिंग यू सिक्योरिटी डायनेमिक्स क्या है मिडिल ईस्ट के। एक तरफ ईरान हो गया, एक तरफ सऊदी अरेबिया और लाइक माइंडेड कंट्रीज विच आर डिपेंडेंट एंड विच आर लिंक विद द यूएस हो गए। एक तरफ जो है आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इनका इम्पैक्ट उधर जाके जो हो गया। तो ये सिक्योरिटी डायनेमिक्स है। इसराइल तो फिर है ही, इसराइल तो की पार्ट हो गया कि इसराइल के एग्जिस्टेंस को ही जब क्वेश्चन किया जाता है तो उसकी बात हो गई। तो I2U2 प्लेटफॉर्म, जिसमें मेंस में क्वेश्चन भी आया है, इंडिया इजराइल यूए एंड यूएस, इसकी बात हो गई। इस पे भी हमने अपने वन ऑफ द लेक्चर्स में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सो प्लेटफॉर्म किस पे फोकस करता है? I2U2 का इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सिक्योरिटी, एक्सेस टू एनर्जी, स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड सो ऑन। तो ये पॉलिसीज बिल्कुल अभी चेंज नहीं होने वाली एज फार एज इजराइल इज कंसर्न। दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो मैंने इसी बहाने आपसे इंडिया इजराइल रिलेशन की भी थोड़ी सी चर्चा कर दी, ये मैं आपसे कहना चाह रहा था। नाउ फर्दर इफ आई टॉक अबाउट any other PT fact I can't see over here. So we have to move to the next point. Now the next one. Okay, it's here. Just joining it with you. The inflation is hitting a record 10.7 in the Eurozone. We just to keep an eye on that. And
Lula de Silva, again its news is there. Jail term to third term. It is his third term, and he had been to jail also. Chip and integrated circuit, we have already done a couple of articles, which is very, very important. So Meghalaya, I'm going to talk about the case study, which is done by the MD and CEO of CMI Limited, Consumer Pyramid Household Survey, CMI, Consumer Pyramid Household Survey is done by CMI, Northeast में. The survey was done in Assam, Meghalaya, Tripura, also Sikkim, and border states of Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, वो नहीं हो पाए. But the data is there. Let's talk about it. Record on labor, basically LPR, that is labor participation rate. So Tripura and Meghalaya tops in terms of labor participation rate and employment rate. 60% Meghalaya has 60% with Meghalaya, that is highest LPR, और उनका highest ER भी है, that is employment rate. Unemployment rate is around 2%. Tripura का LPR second to Meghalaya, it is 52%, और LPR around ER around 45%, that is employment rate. तो ये बात हुई. तो अब लेबर मार्केट के स्टैटिस्टिक्स को दर्शाता है when it is compared with the all India level. LPR of less than 40% and all over, and 37% of employment unemployment rate. Employment rate 37% and unemployment rate around 7 to 8% पूरे इंडिया की अगर हम बात करें. So even in the what I should say pre-survey times, it is saying जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हुआ 2021 में, उससे अब पता चला कि भाई उसमें से कुछ चेंजेस आए, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वो मेघालय एंड त्रिपुरा, दे स्टैंड आउट इन टर्म्स ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स. उनका बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ और उनका डिसेंट लेबर स्टैटिस्टिक्स है. असम का बॉर्डर भी है बांग्लादेश और भूटान के साथ, लेकिन थोड़ा. देन अदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स लाइक बॉर्डर नेपाल, भूटान, चाइना एंड म्यांमार, ऑल ऑफ देम आर लैंडलॉक्ड. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से. पीटी का क्वेश्चन ही बन जाता है कि जैसे मैंने फिर से रिपीट करता हूँ, मेघालय एंड त्रिपुरा बॉर्डर विद बांग्लादेश, असम is having a slender border with Bangladesh and Bhutan. All other northeast states are having border with Nepal, Bhutan, China and Myanmar, and all of them are landlocked. ये एक important बात है. So मेघालय क्या है? Wet and mountainous. Cherrapunji, wettest place. And state is populated by people classified as tribals. 75% are practicing Christians. Matrilineal system follow करते हैं. Lineage and inheritance is traced through women. Youngest daughter inherits all the wealth and take care of her parents. Okay, that's an amazing thing. And this matrilineal system is most likely the reason why the state has so far highest female participation rate in India. The female LPR कितना है? 49 point, 49.5%, higher than even Bangladesh. Bangladesh में 36%. Second, अगर आप फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट देखेंगे, दैट इज तेलंगाना, इट इज ओनली 27%. तो स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशन, अगर हम हायर फीमेल एलपीआर की बात करते हैं, तो पुअर स्टेट्स तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना अनएम्प्लॉयड रहना. अब मेघालय का क्या है? लो पर कैपिटा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है एट अराउंड 69,133 2021-22 के उससे बात करें हम. बियरली जो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का है अराउंड 1,07,000. तो बट इट्स पर कैपिटा जीएसटीपी वाज सिग्निफिकेंटली हायर देन दैट ऑफ बिहार. बिहार से ज्यादा है, उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा है, झारखंड से भी ज्यादा है, जिनका एलपीआर रेट थोड़ा है. बात समझिएगा. तो मेघालय का लोअर एलपीआर इनकम डज नॉट एक्सप्लेन कि उसका हाई फीमेल एलपीआर क्यों है, क्योंकि जो उससे कम अगर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाले स्टेट्स हैं उनका ज्यादा होना चाहिए, तो उनका तो नहीं है. सो मेघालय की इकोनॉमी इज एग्रेरियन, लेकिन बाकी स्टेट से ज्यादा एग्रेरियन नहीं है. लेस देन 29% इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, जबकि इंडिया का एग्रीगेट 36% है. तो 21% ऑफ वर्कफोर्स रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन में है. लेबर जो है पार्शली मूव आउट हो गया एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी से, जो पहले होता. सो पॉवर्टी है या इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है, लेकिन कुछ तो है जो पॉवर्टी और इंडस्ट्रियल जो स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन करता है. कुछ तो ऐसा है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई फीमेल एलपीआर है. तो क्या हो सकता है अगर वो नहीं है? अगर अगर आप बोलोगे पॉवर्टी भी कारण नहीं है, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर भी कारण नहीं है, तो कुछ तो है. क्या है? क्या है? क्या वो ट्राइबल क्रिश्चियन मैट्रिलिनियल सिस्टम है, यानी बोथ जेंडर्स डबल इंजन?
बोथ जेंडर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन लेबर मार्केट। तो मेघालय अगर ऐसा होता तो मेघालय का बहुत ज्यादा लोअर पर कैपिटा, मतलब जो जीएसडीपी है यानी जीडीपी है उसका हायर होना चाहिए था पर कैपिटा जीएसडीपी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के मुकाबले, उसका तो लोवेस्ट है। मणिपुर कुड बी लोअर देन इवन मेघालय, बट उसका डेटा नहीं है। ये कारण और भी हो सकता है, इट इज ए टेरेनियस, पॉसिबली माउंटेन टेरेनियस चैलेंज है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। पर वुमेन आर एम्प्लॉइंग, वुमेन आर इनटू एम्प्लॉयमेंट, वो एक बहुत ही इंकरेजिंग बात है। त्रिपुरा में बांग्ला स्पीकिंग हिंदू पीपल, लिटरेसी रेट इज अमंग हाईएस्ट इन इंडिया। Female LPR 23.8%, ranks third after Meghalaya and Telangana. State is neither tribal nor Christian nor matrilineal. Highly literate, but केरला भी है, केरला में लेकिन लो फीमेल है LPR. Perhaps it is the culture associated with migrants that explains here high LPR. The causes leading to high female LPR is best left to आप एकेडमिक कॉज मान लीजिए, बट क्या नोट करने की बात है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई फीमेल LPR है। हाई फीमेल लिटरेसी एंड हाई LPR कैन बी एक्सपेक्टेड टू डिलीवर बेटर पर कैपिटा GSDP देन डिलीवर्ड टुडे। इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा आ सकते हैं और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में ज्यादा आ सकते हैं। तो आप मुझे 3 लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के नाम बताइए तो मैं जानूं। So it was a wonderful, I think, point and a very very unique high article, which is for General Studies paper 1 में भी आ रहा है, 2 में भी, 3 में कहीं ना कहीं सब जगह काम आ रहा है. So we have to see that. That is very important. Going to the next one. Give me a moment, please. More than a moment. Okay, it's there. Shall we go for it? क्या MPC रिस्पॉन्सिबल है? कैन वी से MPC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेशन? अगर ये क्वेश्चन उठता है तो हाउ यू गोना आंसर इट? क्या MPC is responsible for food for inflation? Because there are domestic and global causes. मॉनेटरी टूल्स का तो एक लिमिटेड रोल है। क्या हम कह सकते हैं कि जो बैंड है, इस बैंड से अगर बियॉन्ड जाता है देन MPC इज रिस्पॉन्सिबल? सो RBI ने रिस्पॉन्स दिया, CPI इन्फ्लेशन जो है अबव दिस मार्क, जो सिक्स सिक्स का मार्क है, 6% का मार्क है, वाई भी देगा, एक्शन भी देगा और टाइमलाइन भी देगा कि वो छेती कैसे आएगा। पर थर्ड आंसर कि भाई कैसे आएगा ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मार्केट स्पेकुलेशन, ग्लोबल डिमांड, यूक्रेन रशिया यूक्रेन क्राइसिस, रोल ऑफ सर्विस सेक्टर, प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक एडिबल ऑयल्स एंड सो ऑन, ये सारे के सारे RBI के हाथ में कंप्लीटली नहीं है। GST है, ट्रेड टैक्स है, लेकिन ये नहीं है। तो फूड एंड ऑयल वॉलेटिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर।
food and oil volatility. They cannot be controlled completely by the federal rates or by the repo rate. So let's see how things will move. तो हमने एक डिबेट किया छोटा सा कि क्या उनको रिस्पॉन्सिबल माना जा सकता है कि नहीं माना जा सकता. टेक्सटाइल्स के लिए भी पीएलआई, जो अभी हमने बात की थी, सेमीकंडक्टर्स के लिए भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI 2.0. It will be have extensive discussions with the stakeholders like the way it has been done for semiconductors. So PLI 2.0, क्योंकि पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 की बात हो रही है. So definitely it is a very very important element for India, because the textile industry is surviving because of the cheap labor, and we must be having high technology involvement. We must have SEZ kind of textile SEZs होने चाहिए, and we have great competition from countries like Cambodia, Bangladesh, Vietnam, and obviously China. These are very very important areas. Similarly, if I pick up yesterday, one point was missing. Let me go back and have a look at it, if I'm able to do so. Or I may be picking up it differently also. Lightning disaster. This was the article I was willing to share yesterday also. मैं भी बात कर देता हूँ, जैसे कि आपका बाकी डिजास्टर मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. Lightning always kills so many people during especially during the monsoon season. This time 579 people according to the situation report of Ministry of Home Affairs, and Madhya Pradesh has the highest number of deaths, followed by Maharashtra, Gujarat, Bihar, Rajasthan and Chhattisgarh. So India experiences loss of lives जाता है, poverty जाता है, property जाता है, and not poverty, I should say property only, and livelihoods. और इसकी फ्रीक्वेंसी की बात भी होती है, तो between 1972 to 2019 more than 90,000 people were killed due to lightning, followed by floods and rain. यानी lightning से ज्यादा लोग मरे flood से भी, हीट वेव से भी ज्यादा लोग मरे, lightning से मरे, लैंडस्लाइड से भी ज्यादा लोग मरे, lightning से मरे, कोल्ड वेव से ज्यादा लोग मरे, lightning से मरे. So the accidental deaths and suicides in year 2021 report that confirms कि more than 7,000 people killed due to natural disasters. यानी 40% death took place due to lightning. 9.2% death due to floods, 8.7% due to cold wave, 5.3 due to landslide, 5.2 due to heat stroke. तो सोचिए आप lightning कितना important है. India witnessed 18.5 million lightning strikes सिर्फ 6 महीने में. Within 12 months, April 2020 to March 2021. 34% more strikes than the last year. लाइटनिंग के इम्पैक्ट जान लीजिए. एग्रीकल्चर, एविएशन, पावर, कम्युनिकेशन सेक्टर. रूरल एंड फॉरेस्ट एरियाज मोस्ट वनरेबल, बिकॉज लाइटनिंग प्रेजेंस ऑफ वाटर बॉडी इज एवरीवेयर. टॉल ट्रीज में भी होता है. अर्बन एरिया के मुकाबले 96% डेथ कहाँ हुई? रूरल एरियाज में. डबल जेपर्डी. स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर ज्यादा हुए. 77% ऑफ फार्मर जो मरे वो एग्रीकल्चर फील्ड्स में काम करते समय भी मरे. खरीफ क्रॉपिंग सीजन, मानसून पीरियड. और ट्राइबल पॉपुलेशन हैज आल्सो बीन इन्वॉल्व. ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल. मोर वनरेबल देन द अर्बन एरियाज. तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? दैट इज व्हाट आई वांट टू डू. ट्रेनिंग एंड कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम. देयर इज नो नेशनल पॉलिसी. देयर मस्ट बी नेशनल पॉलिसी टू टेकल लाइटनिंग फर्टिलिटीज. आप लैंप सम पैसे दे देते हैं डिसीज पर्सन को, वो लेकिन कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं है. ओडिशा गवर्नमेंट गिव्स 4 लाख स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स से देता है वो. अदर स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसे ही दे देते हैं, लेकिन दिस इज नॉट द पॉलिसी. सेंटर शुड इंक्लूड लाइटनिंग एज ए नेचुरल डिजास्टर टू मिनिमाइज लाइटनिंग कॉज डेथ्स. स्टेट को प्रिपरेशन लॉन्ग टर्म मिटिगेशन में काम के लिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करने के लिए उसको लोकल एजेंसीज को इन्वॉल्व करना चाहिए. डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए. मैपिंग वनरेबल पॉपुलेशन विद पोटेंशियल लाइटनिंग हॉटस्पॉट्स, जो हम बाकी जगह करते हैं. अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी होने चाहिए. एंड इंस्टॉलेशन ऑफ लाइटनिंग डिटेक्शन सिस्टम्स इन लोकल एरियाज.
गवर्नमेंट का एक डेटाबेस प्रिपेयर होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स, या फिर जो है जेंडर वाइज लाइटनिंग डेथ, ऑक्यूपेशन वाइज फर्टिलिटीज, सेंटर को चाहिए कि इस तरीके से एक एक्शन प्लान में मदद करे। टारगेटेड इंटरवेंशन होना चाहिए। तो ये जो मैंने आपको लाइटनिंग के लिए बोला, ये सारा का सारा आपका क्लाउड बर्स्ट से लेकर बाकी डिजास्टर्स में भी होता है। लाइटनिंग को तो हम डिजास्टर में काउंट करते ही नहीं है। दैट इज वन पॉइंट आई वांटेड टू शेयर, कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है। गोइंग बियॉन्ड, इफ आई गो बैक टू द नेक्स्ट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, वी हैव टू सी कि उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे, हम पहले ही बात कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट, वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट लूलास प्रेसिडेंसी। हम ऑलरेडी उसके बारे में बात कर चुके हैं। ये देखिए, लूला डिसिल्वा 1970 rose to prominence after organizing strikes against Brazil's military government. उनके प्रेसिडेंसी के टाइम में इकोनॉमी रोज टू द सिक्स्थ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, सिक्स लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड कप भी किया, ओलंपिक्स भी किए। 2003 to 2010 टू टर्म प्रेसिडेंसी मार्क्ड बाय कमोडिटी ड्रिवन इकोनॉमिक बूम। जेल में कब गए? 2018। 77 ईयर ओल्ड लीडर, करप्शन स्कैंडल, बट उन्होंने हमेशा डिनाई किया कि मुझे कोई किकबैक्स नहीं मिले। 18 months he was in prison. He was freed last year. So narrow win margin है उनका 50.9 only. बोल्सोनारो का एडमिनिस्ट्रेशन वाज मार्क्ड बाय स्पीचेस जो थोड़ी सी पोलराइज थी, वाइडली क्रिटिसाइज्ड किया, उनको क्रिटिसिज्म हुआ द वे ही हैंडल द पैंडेमिक, वर्स्ट डिफॉरेस्टेशन इन अमेजन रेन फॉरेस्ट इन लास्ट 15 years, बट देन द इलेक्टोरल सिस्टम हैज बीन रोबस्ट। चैलेंजेस हैं उनके सामने, एक लिविंग अमेजोन को रखने का चैलेंज है। पेंडेमिक के बाद इकोनॉमी जो है डाउन गई, and he has failed in that sense. Lula is going to return to the state-driven economic growth. He will help millions to come out of poverty. That is what is believed. मोरबी ब्रिज को हम पहले डिफरेंट डिफरेंट एंगल से हमने डिस्कस कर लिया है। देयर इज नो नीड टू गो फॉर इट। फ्यूचर जब हम बात करते हैं गवर्नेंस की, तो हियर वी हैव टू सी, let's talk about GM mustard as a game changer or not. Import dependence of the edible oil, huge problem for India. Import in million tons, more than 14, yeah, more than not 14, I should say. Import is about 153 million tons. Import of edible oils and import domestic production ratio जो है वो बहुत थोड़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा,
Import dependence has been accompanied by falling share of mustard oil consumption. डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंस के साथ साथ वो कम होती चली गई. इंपोर्ट डिपेंडेंस हैज बीन accompanied by the falling share of mustard oil consumption. ये दूसरा फैक्टर है. लेकिन mustard oil is still the largest produced domestic edible oil in India. Mustard oil is the largest produced domestic edible oil in India. बस ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए. अगर आप बाकी बात करेंगे तो आप देखिए, this is coconut, then you have cotton seed, then you have palm oil, then you have soybean oil, sunflower seed oil. Have a look. 1964 65 से जब आप 2021 2022 को करते हैं तो बीटी कॉटन के एक्सपीरियंस हमें बोलता है कि जीएम टेक्नोलॉजी कैन डेफिनेटली बूस्ट आवर प्रोडक्शन, बिकॉज वी हैव सीन कॉटन प्रोडक्शन जो है कितनी बढ़ गई है पहले से. बूस्ट टू द इनकम ऑफ द फार्मर्स आल्सो. सी हैव अ लुक. 1965 नॉर्मल कॉटन और अभी हम देख रहे हैं, देखिए, दैट्स हाउ इट इज. प्रोडक्शन एंड यील्ड. प्रोडक्शन भी बढ़ गई है, यील्ड भी बढ़ गई है. बट जीएम क्या एकदम से हो जाएगा? जीएम से क्या एकदम से फायदे हो जाएंगे? Because even in case of BT cotton, we say that that has been the result of increased input intensity. कीवर्ड कहां पर, यहाँ पे क्या आया? इंक्रीज्ड इनपुट इंटेंसिटी. जितना हमने इनपुट आउटपुट के मेजर को इंक्रीज किया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन जस्ट यूजिंग जीएम क्रॉप्स. यानी हमने जो है कॉटन प्रोडक्शन के अंदर हमने जो है यू नो कैपिटल इंटेंसिटी जो हमने इंक्रीज की, हमने कैपिटल इंटेंसिवनेस हमने रेज कर दी. फार्मर्स ने जो है इकोनॉमिकली वनरेबल जो चीजें हैं उनको ऊपर उठाया और अपने लेवल को रेज किया. फार्मर जो है वो अब कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन की तरफ झुके. रिस्क आए लेकिन फिर भी वो उन्होंने पैसा लगाया, माल लगाया. कैपिटल इंटेंसिव फार्मर्स एल्सवेयर इन द वर्ल्ड, उनको तो इकोनॉमिक सेफ्टी नेट्स भी मिलते हैं, लेकिन इंडिया के फार्मर्स को वो सेफ्टी नेट भी उतने उस तरीके से नहीं है. तो इसीलिए सिर्फ जीएम क्रॉप्स की वजह से हमारा कॉटन प्रोडक्शन बढ़ा, ऐसा कहना अनक्रिटिकल अप्रोच होगी. सो जीएम मस्टर्ड का क्रिटिकल ट्रायल होना चाहिए. कमर्शियल कल्टीवेशन को अलाउ करेंगे तो और भी रीजन होने चाहिए. वी हैव टू बी विजिलेंट इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. यूरोपियन कंट्रीज जो है अभी भी जीएम क्रॉप्स को अलाउ नहीं करती हैं और it is a it is a debatable thing. That's what we want to say. तो I wanted to give you from the prelims perspective. एक क्वेश्चन तो बनता ही है आपको अगर ये सारी चीजें समझ में आती हैं. दिस इज ऑन योर स्क्रीन, रीड इट केयरफुली, इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग, टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ प्रिंट आउट, बट मेक योर ओन नोट्स. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट दैट एवरीथिंग विल फॉल अपार्ट. अब आइए इधर, जो हम बात कर रहे थे अभी, देखिए आपके सामने ऑन योर स्क्रीन, ये है आपका जो मैंने पहले बात की थी, रूट पता होना चाहिए. रूट टेकन टुवर्ड्स बॉस्फोरस स्ट्रेट. देखिए अब आप प्रीलिम्स का डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है. लास्ट डे में पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आराम से पढ़िए, उसको समझिए. ओडेसा, आई वाज टॉकिंग अबाउट ओडेसा. सी मोल्डोवा, सी सेवेस्तोपोल. अटैक टुक प्लेस हियर ऑन द रशियन शिप्स ऑन सैटरडे. दिस इज हियर सेवेस्तोपोल. दिस इज ब्लैक सी. दिस इज जंगुडाल. दिस इज टर्की. area of operations are under Russian forces. This is the area which is under the Russian forces. This is हायदर पासा, ये इस्तांबुल का है. ये बॉस्फोरस स्ट्रेट है, यहां से जाएगा. This is how it is. खरसोन, बर्दियांस्क एंड मारियोपोल. मारियोपोल तो बहुत न्यूज में रहा भी है. तो क्या हुआ है? मेन फ्लैश पॉइंट है लेटेस्ट शोडाउन. ड्रोन अटैक हुए सैटरडे को रशियन नेवी शिप्स के ऊपर पोर्ट ऑफ सेवेस्टोपोल में. एंड रशिया की नेवी बेस जो ब्लैक सी में है, रशिया ने उसके बाद बोला कि भाई मेरा कोई अब रोल नहीं रहेगा. जो सेफ एक्सपोर्ट ग्रेन का होना है यूक्रेन से, उसके लिए मेरा कोई डील नहीं है. सो डील वाज स्नैप्ड इन वन वे. यूक्रेन ने ना तो कंफर्म किया ना डिनाई किया. उन्होंने कहा कि रशियन नेवी उनकी मिलिट्री का टारगेट था, बस इतना कहा. तो डील क्या है? डील ये है कि रशिया ने एग्री किया कि यूक्रेनियन पोर्ट्स को मैं अलाउ करेंगे ग्रेन जाने के लिए.
negotiated by Turkey and the UN. Ukraine vessel will escort the ship carrying grains and Russia उनको अटैक नहीं करेगा, और बॉस्फोरस स्ट्रेट के वहां से टर्की और यूएन जो उनके इंस्पेक्ट करेंगे कि उनके अंदर वेपन्स तो नहीं है। तो ये रेयर एग्जांपल है कोऑपरेशन का यूक्रेन और रशिया के बीच में, जिसकी वजह से ग्लोबल प्राइसेस इतने बढ़ चुके थे। 9 मिलियन टन ऑफ ग्रेन है और 397 शिप्स हैं। जब रशिया ने सस्पेंड कर दिया तो यूएस ने रशिया को बोला, ऑब्वियसली यू आर यूजिंग फूड एज अ वेपन। यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की, उन्होंने भी कहा कि यूएस इज ब्लैकमेल, यूएसएसआर इज ब्लैकमेलिंग बेसिकली। रशिया ने बोला इट इज नॉट इट सेम, इट इज नॉट डिनाइंग, यूएन ब्रोकर डील है, एंड रशिया कैन नो लॉन्गर गारंटी फॉर द सेफ्टी ऑफ द शिपिंग। तो फूड क्राइसिस है ये अपने आप में, और अपने आप में देखिए अब आप कितनी बड़ी बात है, ये एफएओ का रोल आ जाता है। यूएन ने बोला है 23% ऑफ द टोटल कार्गो एक्सपोर्टेड फ्रॉम यूक्रेन अंडर द ग्रेन डील हैज गॉन टू लोअर एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, जो हमने अभी बात की थी। आप देखिए हाई इनकम कंट्रीज कौन सी हैं, देख लीजिए, इधर पूरा यूरोप आ जाता है, इसराइल, रोमानिया, साउथ कोरिया, ओमान, नीदरलैंड्स, जर्मनी, यूके, आयरलैंड, बेल्जियम, स्पेन, पुर्तगाल, ईयू, फ्रांस एंड सो ऑन। फिर आपका अपर मिडिल इनकम में टर्की, चाइना, लीबिया, अपर मिडिल इनकम, इराक, this is also put up here. This is a little surprising, which we don't consider Iraq as an upper middle country. लोअर मिडिल इनकम में आप देखिए इंडिया, इजिप्ट, कीनिया, जिबूती, ईरान, अल्जीरिया, लेबनान, वियतनाम, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। एंड देन यू हैव द लो इनकम में अफगानिस्तान, यमन, सुडान, इथियोपिया, सोमालिया एंड सो ऑन। That's how it is. But this is an important chart from the geographical, from the scientific, from ecology, from the prelims perspective. Do understand it, enjoy it, watch it with intensity, because ये gossip नहीं है। हमें लीडरशिप प्रोवाइड करनी है फॉर द G20। अब इसी की चर्चा होती रहेंगी, बार बार आएगा, लेकिन हम रिपीट नहीं करेंगे। तो मैं एक कीवर्ड बता देता हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको पता होने चाहिए। देन ब्रिक्स और क्वाड, क्वाड के बारे में हमने पहले भी बात की है, आप उसकी चर्चा देखिए। दूसरा, इंटरनेशनल कम्युनिटी विल लुक फॉर सम सीरियस रिसोर्सेज क्वेश्चन, जो हमने एजेंडे की बात भी की थी। तो वसुधैव कुटुंबकम और पीपल सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन, उसकी तो हम बात करते हुए आए हैं। दूसरा, इंडिया इज एक्सटेंडिंग सपोर्ट टू द नेबरहुड इन द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी से, और उसके बाद इंडिया तो अके इन इंडोनेशिया टू मोजाम्बिक, मोजाम्बिक ऑन द ईस्टर्न लिटोरल। लिटोरल एक वर्ड होता है, जैसे अब सिंगापुर स्टेट लिटोरल स्टेट बोलते हैं उसको भी। लिटोरल यानी जो जो सी लेन्स के आसपास जो स्टेट्स होंगे उनको आप लिटोरल स्टेट्स कह सकते हैं, छोटे छोटे स्टेट्स। तो यहाँ सिंगापुर की बात है। सो इंडिया टर्म एज यूएनएससी मेंबर विल एंड दिस ईयर, लेकिन अपना मार्क तो हमने दिया ही दिया है। यूएनएससी अडॉप्टेड ए कंसेंसस बेस्ड प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री इंडियन पीएम प्रेसिडेड ओवर ए यूएनएससी समिट, दिस इज आल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम। Then, in its 2-year term at UNSC, India has effectively engaged on various issues from international community approach to Taliban, peacekeeping। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने अपने आप आपको मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए यूएनएससी का मैंने आपको मसाला दे दिया, इंट्रोडक्शन बनाया, ये फैक्ट्स डाले, अपने बनाए, काम खत्म। सागर का कॉन्सेप्ट दे रखा है, सिक्योरिटी ग्रोथ एंड फॉर ऑल इन द रीजन, वन अर्थ वन हेल्थ, वन अर्थ वन हेल्थ लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर इंटरनेट, P3 प्रो पीपल, प्रो प्लैनेट पीपल, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, पंच अमृत फॉर क्लाइमेट कमिटमेंट, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो इंडिया ने दिए हैं, ये सब आपको अच्छे से अपनी एक जगह पता होने चाहिए। इंडिया ने जो है आपका वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के लिए बोला, दैट इज व्हाट, जो मैं आपसे पढ़ के बता रहा हूँ, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, दैट हैज बीन शेयर बाय आवर ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डायरेक्टली। नो गॉसिप, नो इसको डाइल्यूशन, एकदम डायरेक्ट। इंडिया का एक्सेप्टेबिलिटी इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, स्ट्रॉन्ग डेवलपिंग क्रेडेंशियल्स। तो इसमें से चैलेंजेस भी रेज होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे क्वेश्चन भी रेज होते हैं, फैक्ट्स भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपका फर्ज है, चाहे फिर आप इसको शाम को सुन रहे हो चाहे सुबह सुन रहे हो, आप मुझसे क्वेश्चंस पूछिए। आप व्हाट्सएप पे जब मुझसे बात करते हैं, जब हम क्वेश्चंस करते हैं, यू कैन ऑलवेज शेयर कि ये हो रहा है, इतने लेवल पे हुआ है, और उसके हिसाब से फिर हमारा और भी एंगेजमेंट
माइंडफुल हो जाएगा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. माइंडफुल एंगेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. COP 27 पे अभी हो रहा है. वी विल टेक इट अगेन. सेडिशन लॉ की हम पहले बात कर चुके हैं. सेडिशन लॉ का कोई प्लेस नहीं है सिविल सोसाइटी में, ये बात बिल्कुल सच है. और सुप्रीम कोर्ट ने 5 महीने पहले बोल दिया था कि सेडिशन लॉ का आप यूज ही नहीं कर सकते. एंड नाउ द गवर्नमेंट इज डेलिबरेटिंग ऑन द इशू, और इसीलिए अब पार्लियामेंट्री सेशन में बात होगी. होम मिनिस्टर लास्ट वीक सेड दैट सेंटर वाज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस चेंजेस इन द क्रिमिनल चेंजेस इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड IPC. तो इसका मतलब है कि ये जो वेपन है सेक्शन 124A का, जो ब्रिटिश ने यूज किया था हमारे नेशनलिस्ट, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के अगेंस्ट में, उसकी बात हो रही है. और नॉन स्पेसिफिक चार्जेस के ऊपर हो जाता था, बट स्वीपिंग चार्जेस होते थे. आपने देश के खिलाफ काम किया, आप अंदर. तो कन्विक्शन रेट तो बहुत थोड़ी, लेकिन यूज बहुत ज्यादा. सेडिशन लॉ जो है, कोई भी ऑफेंडिंग स्पीच या कोई एक्शन आप देश के खिलाफ पब्लिक डिसऑर्डर के लिए आप प्रमोट करने के लिए करते हैं, तो आपको उसमें डाला जाएगा. लेकिन इसको यूज किया जाता है एंटी गवर्नमेंट आवाज को बंद करने के लिए. सो स्टेट मस्ट डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट एनी इंटरनल एक्सटर्नल एग्रेशन, बट देन रिस्ट्रिक्शंस मस्ट बी रीजनेबल. हर चीज को आप इसके लिए नहीं लगा सकते कि भाई ये देश आपकी आपकी आवाज को रोका जा रहा है. सो आइडियल्स ऑफ फ्री डेमोक्रेसी को हमें नहीं रोकना है. वो कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के आइडियाज को. तो वंडरफुल इट इज डन. एक और आर्टिकल मैंने जनरल स्टडीज पेपर 2 के हिसाब से आपके साथ शेयर कर दिया. गोइंग टू द नेक्स्ट वन, लेट्स सी what else is there, so that we can always pick up the key idea. Give a moment please, and I'll be there with you. I mean to say, let me open it and upload it. Coming to the Hindu newspaper, नॉर्थ ईस्ट मानसून. अब देखिए यहाँ नॉर्थ इंडिया में आप बात करते हैं तो मानसून हैज रिट्रीटेड, बट साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, जब साउथ इंडिया की बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट मानसून इज विल बी एट द पीक. दैट इज हाउ द ब्यूटी ऑफ इंडिया. जब आप ज्योग्राफी NCERT में न्यू कवर और सारा आप, तो आप मैकेनिज्म को समझिए कि कौन सा मैकेनिज्म कब है. बहुत ही इसमें बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही ज्यादा टेक्निकल नहीं कहूंगा, लेकिन मैं बहुत ही स्पेसिफिक और नॉन गॉसिपिंग और नॉन गेसिंग क्वेश्चन आएंगे. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन्वेजिव स्पीसीज की अगर हम बात करें, इन्वेजिव ट्री स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं मधुमलाई टाइगर रिजर्व में, तो उसका नाम है सेना स्पेक्टेबिलिस. एक एक्सोटिक ट्री है जो कि 1200 हेक्टेयर तक बफर जोन में पहुंच गया है इन मधुमलाई टाइगर रिजर्व इन नीलगिरी हिल डिस्ट्रिक्ट. तो उसके लिए स्ट्रेटजी छोड़ी जा रही है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, हाउ टू टैकल दिस इन्वेजिव स्पीसीज which is spreading in the buffer zone. It was introduced as an ornamental species and for use as firewood from South and Central America, लेकिन अब हाईली इन्वेजिव हो गई है, स्पेशली सिगूर प्लेटू. ओके, कौन सा प्लेटू? सिगूर प्लेटू. सो नेटिव स्पीसीज से एक तो हिट हुई, और ब्राइट येलो फ्लावर्स चारों तरफ दिखाई देते हैं. नेगेटिव अफेक्ट है ये लोकल बायोडाइवर्सिटी पे. नेटिव स्पीसीज कम हो रही है, फूड अवेलेबिलिटी कम हो रही है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज स्प्रेडिंग फास्टर इन द लास्ट 5 years. And then policy level discussions are going on at Tamil Nadu newspaper, Tamil Nadu Newsprint and Papers Limited, जो इसको यूज करेगा वुड को इस सेना स्पेक्टेबिलिटी से पेपर बनाने के लिए. सो फंड रेज किए जाएंगे ताकि इको रिस्टोरेशन किया जाए नेटिव स्पीसीज का. देखिए अब रोल भी आ गया, इंडस्ट्रियल रोल भी आ गया, पॉलिसी मेकर्स का रोल भी आ गया, गवर्नमेंट का रोल भी आ गया, डाइवर्सिटी का रोल भी आ गया. सिस्टमेटिकली रिमूव लेंटाना कामारा, एक और मेजर वीड है. दो वीड मैंने आपको बता दिया, एक मैंने ऊपर बताया, दूसरा मैंने लेंटाना कामारा बता दिया. वो भी है. दैट इज प्रॉब्लम टू बोथ कोर एरिया एंड बफर जोन. कोर क्या मतलब? जहाँ पे मेन कोर एरिया है. बफर मतलब कि आप ना तो बाहर आए हैं ना आप अंदर हैं, वो उसको शील्ड कर रहा है. जैसे आपके पास जब थर्मस होता है तो थर्मस इज हैविंग ए बफर अराउंड इट, ताकि वो अंदर चीज को गर्म या ठंडा रखे. तो Sena spectabilis and Lantana camara, they are in news. Five major, they are among the 5 major invasive species. weeds हैं बेसिकली जो नीलगिरी में है. और वेटल एक है. वेटल एक और तीसरी स्पीसीज वेटल है,
विच इज ऑल्सो इन्वेसिव। चौथी यूकलिप्टस एंड पाइन, वो एक्सोटिक हैं लेकिन इतनी जल्दी स्प्रेड नहीं होते जितनी जल्दी we are talking about these one. That's how it is. Now moving further, अगर हम इंडिया स्टोरी की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, तो देन वी हैव टू सी दैट हाउ वी हैव टू ग्रो, व्हाट इज द एम्प्लॉयमेंट रेट, what is our poverty reduction and so on. So according to ILO, India's youth unemployment rate, people between 15 to 24 who are looking for work, is 28.3, around 28.3. अब इतना जब आप बोलते हो तो then India is coming under the category of nations like Iran, Egypt, Syria, and it is much more worse than Indonesia, Malaysia and Bangladesh. तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी क्या हो गई मिक्स? पहले भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, जॉबलेस ग्रोथ है क्या? बहुत बार क्वेश्चन आया। अब जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यू फाइंड तो आप बोलोगे सेम ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं क्या? सेम नहीं पूछ रहे हो। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज टेल यू, इन सिंप्लिसिटी, कंसिस्टेंसी, इंटेंसिटी, रिविजन, और कुछ नहीं चाहिए, एंड वी आर थ्रू। तो जीडीपी था, अब जैसे in 21-22 GDP growth rate was 8.7%, highest among, one of the highest among the world. But then we have to see that previous year it was minus 6.6, that is in the bottom half of the global growth. 2023 it is projected 6.1. But the point is that India's growth is concurring at the top end. अगर हम बोलते हैं जब few MNCs, few companies they are having disproportionate share of profits, तो अनएम्प्लॉयमेंट हाई होगा ही होगा। तो बात है कि इनइक्वल, there is no equal division of resources. Basically large segment of people, उनके लिए तो नेगेटिव ग्रोथ हो गई। इंडिया का जो है रैंक गिरने की बात नहीं है, इंडिया का परफॉर्मेंस कैसे स्लाइड हो रहा है अपने पास्ट परफॉर्मेंस से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू सी। सो स्लगिश ग्रोथ रही पहले 4 डिकेड्स में आफ्टर इंडिपेंडेंस। अगर मैं आपको बैकग्राउंड दूं, देन अर्ली 1990s, दैट इज ड्यूरिंग लिबरलाइजेशन 91-93, उस टाइम में बढ़ना शुरू हुआ। फ्रॉम 2000 ऑन टू 3 ऑनवर्ड्स इट जॉइन द एशियन सुपर परफॉर्मर्स, जिनको हम सिंगापुर, कंबोडिया, नॉट कंबोडिया, सिंगापुर, एंड देन यू हैव इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे जो आपके आसियान रीजन के जो कंट्रीज हैं, दे स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेरी वेल, हम उनका रीच करने लगे। एंड then between 2005 2008 it was one of the top most performers. India grew at 9.3, 9.2 and 10.2, so that has been amazing. उसके बाद रिवाइज भी किया गया, चलो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे ने इनको कट करके 7.9, 8 और 8 बोला, लेकिन फिर भी इंडिया वाज एट ए मच हायर लेवल। देन ग्रेट रिसेशन स्टार्टेड इन 2008 2009, इंडिया ऑन द टॉप ऑफ द ग्लोबल रैंकिंग्स अगर ग्रोथ परफॉर्मेंस की बात करें। बट देन इट इज द क्वेश्चन इज नॉट दैट कि इंडिया की जो है करंट सिचुएशन स्लो है कि फास्ट है, कि कोविड से क्या हुआ, या इंडिया हैंडल कर सकता है कि नहीं कर सकता। द पॉइंट इज दैट इंडिया का जो ग्रोथ चार्ट का जो डाउन फ्लो है वो कोविड से बहुत पहले शुरू हो गया, 2016 में ही शुरू हो गया। ग्रोथ रेट ईच ईयर बिफोर कोरोना इज गोइंग डाउन, दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी डिस्करेजिंग। और ये जो 4 साल का जो स्प्रेड आया नीचे का, क्वेश्चन इस पे आना मुश्किल है फॉर ऑब्वियस रीजंस। 6.9, 6.6, 4.8 और -6.6, सो ये आया 2016-17, 17-18, 18-19, 19-20, ऐसा कभी नहीं हुआ। सो दैट इज व्हाट one reason is policy interventions, whether they have bought the good thing or bad thing. इंडिया जो है इंडिया ने बैंकरप्ट फर्म्स को क्लोज डाउन किया और आगे बढ़ गया, बिजनेस उसके बिना स्लगिश था। लेकिन अब देखना पड़ेगा जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड जिसकी हमने बात भी की थी 2016, इट हैज बीन अडॉप्टेड, और डिमोनेटाइजेशन, क्या उससे कोई बहुत बड़ा खतरा हुआ, क्या वो बहुत बड़ा मिस्टेक था? तो अब लेकिन बात करें हम इंडिया के इन्वेस्टमेंट की, पुअर इन्वेस्टमेंट रेट इंडिया में जो 6 साल रहा है वो भी देखने वाली बात है। टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स ग्रोथ के कौन होते हैं? इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो अगर आप फ्रैक्शन ऑफ नेशनल इनकम आप रोड, ब्रिजेस और फैक्ट्रीज और ह्यूमन कैपिटल पे करोगे तो आप कैसे रेस कर पाओगे? यू हैव टू स्पेंड मोर ऑन ऑल दीज ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑल्सो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रोथ रेट अगर राइज होती है 30% मार्क को जैसे राइज किया फॉर द फर्स्ट टाइम 2004 2005, then by 2007 2008 it reached 39%. India for the first time was looking like the East Asia, जो मैंने अभी कंट्रीज की बात की, ईस्ट एशियन सुपर परफॉर्मर्स। साउथ कोरिया है ईस्ट एशिया में, सिंगापुर है, और
इन्वेस्टमेंट रेट जो है 40% से थोड़ा बस कम ही रहा नीचे गिरने से पहले, बट 2019-20 इट हैज फॉलन टू 32%। बट ऐसा क्यों हुआ? इन्वेस्टमेंट रेट आखिर आता कैसे है और क्या हो पाता है? उसके बहुत सारे ड्राइवर्स हैं। फॉर एग्जांपल, 1, मॉनेटरी पॉलिसी पैरामीटर्स, 2, फिस्कल पॉलिसी, 3, सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। तो ट्रस्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सोसाइटी में अगर ट्रस्ट होगा, पॉलिटिकल सिस्टम पे ट्रस्ट होगा, देन इन्वेस्टमेंट विल बी मोर। तो हमें देखना चाहिए कि इंडिया का इन्वेस्टमेंट रेट कम क्यों हो रहा है। क्या पॉलिटिकल पोलराइजेशन इसका रीजन है? पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल इसका रीजन है? क्या है इसका रीजन? सो सोशल ट्रस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है लॉन्ग टर्म में। आपके आंसर में पॉजिटिवली आप पुट अप कर सकते हैं, यू कैन ब्लेम द रूलिंग गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी फॉर दिस। सो पॉलिसी रॉबस्ट होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और टैलेंट के साथ साथ सोशल फैब्रिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें फ्यू रिच कॉर्पोरेशंस और लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन की जगह स्मॉल फार्मर्स, एमएसएमई, मैं लगातार बात करता आया हूँ डिफरेंट लेक्चर्स में, उस पर फोकस होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ इनकम फ्रॉम द सुपर रिच टू दीज सेगमेंट्स में आनी चाहिए, तब इंडिया जो है रेस कर पाएगा। तो आज हमने क्या किया इस स्टोरी में, इन दिस लेक्चर, अभी जो हमने बात की, हमने पूरा एक ओवरव्यू दे दिया इकोनॉमी का, सारा का सारा, और हमने कुछ भी छोड़ने की बात नहीं की। तो दैट हैज बीन हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड। और पीटी और मेंस दोनों के क्वेश्चन आपको पैरेलली, पीटी की मैं अगर बात करूं तो बहुत सारे इकोनॉमी के क्वेश्चन आप इस माइंडसेट से 100% सॉल्व कर सकते हैं, उसमें मुझे कोई डाउट है ही नहीं, बशर्ते आप मेंटली मेरे साथ प्रेजेंट है कि नहीं है। बात वर्चुअल की नहीं है, बात मेंटल की है। आप मेंटली प्रेजेंट हैं तो काम होगा ही होगा। नाउ गोइंग फर्दर, this is not is required, one article if we can take up. One minute, I'm just coming up with the point. It is taking one moment, please. Okay. So green bonds, I'm just giving you the concept of green bond, the final point that I'm taking up. So green bond, इंडिया का जो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड है उसके प्लान्स हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री इज अनाउंसिंग, गवर्नमेंट इनका बोरिंग प्लान है ग्रीन बॉन्ड्स के लिए, ग्रीन बॉन्ड इशू करेंगे एंड इट विल बी अराउंड 1% ऑफ द टोटल बोरिंग। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जो सस्टेनेबल फाइनेंशियल मार्केट्स को अट्रैक्ट भी करेगा एंड लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल भी रहेगा। यू नो, इंडिविजुअल जो इंडिया के प्लेजेस हैं एज अ पार्ट ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, वो भी हमें हेल्प होंगे और हमारे एनर्जी ट्रांजिशन में भी हेल्प होगा। सेकेंडली, लॉन्गर मेच्योरिटी पीरियड होगा एंड देन देयर विल बी सपोर्ट बाय द इन्वेस्टर्स, और सोवरेन गारंटी है, so that is also going to help us and it will be helping India to grow. And secondly, अगर वो रूपी डोमिनेटेड इशू फॉर्म में इशू होंगे, ऑनशोर मार्केट्स में इशू होंगे, तो और भी अच्छा होगा। एंड इन्वायरमेंटल एंड सोशल गवर्नेंस, ESG,
वो ज्यादा जल्दी हमें ये ग्रीन बॉन्ड्स को लेंगे और हमारे लिए और भी अच्छा होगा। सो ग्रीन बॉन्ड्स और ग्रीनियम, ग्रीनियम अगर हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं तो ये भी हमें सजेस्ट करता है कि लार्जर पार्ट में इंडिया को हेल्प भी मिलेगी, और इंडिया को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स मैच करने के बाद टेक्नोलॉजी है, फाइनेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें हेल्प मिलेगी। जर्मनी ने इसको पाइनर किया, और जर्मनी ने जो है, जर्मनी इज अ लीडर इन दिस, और उसके फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे वाले के भी उस डायरेक्शन में, उन्हीं लाइंस में होंगे। लिक्विडिटी उससे हम जनरेट कर पाएंगे और हम उस पैसे को राइट डायरेक्शन में लगा पाएंगे, अगर आपसे सिंपल भाषा में बोलूं। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनके ऊपर रेगुलेटरी प्रेशर है, जैसे कि एलआईसी है या ईपीएफओ है। लेकिन साथ साथ में अब आने वाले टाइम में हमें देखना है कि हाउ वी कैन रेज द फंड। अभी अभी हमने चर्चा की, अभी अभी हमने 2 मिनट पहले चर्चा की कि हाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भाई आखिर इंडिया इन्वेस्टमेंट कैसे रेज करे, और यही देखो हमें उसका आगे आंसर मिला, ग्रीन बॉन्ड में। तो गोल है इन लेक्चर्स का टू कंटिन्यूसली अपग्रेड योर थिंकिंग, टू कंटिन्यूसली ब्रिंग सिलेबस अंडर कंट्रोल। स्टैटिक पोर्शन को हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, वो जब भी मैं ये आपसे फोन पे बात होती है, जब भी हम कोई काम करते हैं, जब भी हम कोई व्हाट्सएप के ऊपर या कैसे भी हम बात करते हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये एक सेम प्रोसेस फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स एट डिफरेंट लेवल, उनके लिए जरूर हेल्पफुल है। थैंक यू वेरी मच, विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड टॉक टू यू सून।